Yes. Very good morning, boys and girls. Close the door, please. Very good morning, boys and girls. अरे सुबह का ही लेक्चर है. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of 12th standard secondary practice. 12th standard secondary practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज जो हम सेशन देखने वाले हैं इसमें हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. Now we started with learning about the sources of borrowed capital. Sources of borrowed capital हमने डिस्कस करना शुरू किए हैं. Oh, चकुली, attention. We started discussing about the various sources of borrowed capital. Various sources of borrowed capital में जो पहला हमने डिस्कस किया है पॉइंट, that was regarding debentures. That was regarding debentures. What is debenture? Debenture is acknowledgement of debt by the company to some person who is lender, that the company owes certain sum of money to that particular person which is to be repaid at a particular time along with interest. Along with interest. The person who holds the debenture is called as debenture holder. Debenture is a debt security which is form of borrowed capital which is normally used for long term purpose. Right? Which is normally used for long term purpose. क्यों absent हो मात्रा भैया? Why are you so irregular to class? Do you have any valid reason? क्या है? बोलो ना. प्राइवेट तो कुछ नहीं हो सकता, बताओ. अच्छा. Please try to understand. We started discussing about the various basic formula, basic structure. मैंने डिबेंचर का समझाया. The smallest part of the share capital, smallest part of the capital is called as share. Smallest part of the share capital is called as share. In the same manner, the smallest part of borrowed capital is also called as debenture. We divide the entire borrowed capital into small part, and each such small part is issued as a security, which is called as debenture. Right? The holder of the debenture is called as debenture holder. The person holding the debenture certificate is nothing but the debenture certificate is nothing but acknowledgement of the debt towards the person whose name is mentioned on the debenture certificate by the company. Yes or no? Right? Debenture is a source of borrowed capital. Debenture is a source of borrowed capital. Normally debenture is raised for long term purpose only. Normally debenture is raised for long term purpose. यानी fixed asset, start, expansion, diversification, ऐसे major जो capital requirements होंगे, fixed capital requirement होंगे, उसके लिए हम कौन सा source सोचेंगे? Debentures. Right? कल हमने डेफिनेशन देखा था. द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर्स कॉमा बॉन्ड्स. राइट? हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट में उसको डिबेंचर नाम दिया है. लैटिन में वर्ड डिबेर मतलब टू ओ है. तो हमारे इंडिया में डेट सिक्योरिटी को पॉपुलरली हम डिबेंचर कहते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज बॉन्ड्स. पूरे बाकी विश्व में कहीं भी जाओ तो डिबेंचर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. लैटिन में सिर्फ वहां पे जहां लैटिन देश में लैटिन लैंग्वेज वहां पे डिबेंचर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज, इफ यू गो टू यूएस, दे डोंट हैव द वर्ड कॉल्ड एज डिबेंचर, दे हैव बॉन्ड्स. वहां जाके नहीं बोलेगा कोई चला गया यूएस तो बोलेंगे सर यहाँ तो कोई डिबेंचर ही नहीं है. वहां पर जो कॉमनली नाम जो डिबेंचर को दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड्स. सो बॉन्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिबेंचर. हमारे इंडिया में डिबेंचर नाम देने का, डिबेंचर नाम अलग से देने की वजह ये बनी क्योंकि हमारे यहाँ बॉन्ड बोले तो गवर्नमेंट बॉन्ड समझते लोग. हमारे इंडिया में बॉन्ड अगर शब्द का इस्तेमाल किया तो गवर्नमेंट बॉन्ड समझते हैं. तो क्लासिफिकेशन ठीक से, इसलिए एक्ट ने उसको डिबेंचर नाम दिया है. डिबेंचर इज अ डेट सिक्योरिटी विच इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट ओन्ड बाय द कंपनी टू सम अदर पर्सन एंड दैट डेट इज टू बी पेड बाय द पर्सन एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. अभी ओके एंड फाइन? अभी ओके एंड फाइन? कल जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया और उसके अंदर जो सारे मीनिंग लिए, उसके अंदर किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? इज देयर एनी डाउट? Right? What is the reward paid to the debentures? Interest at a fixed rate is paid to the debenture. But obvious point was, आपका दिमाग काम करना चाहिए. You should work very practically. Practical knowledge is very important. Practical knowledge के बिना डेप्थ में या गहराई में नहीं जा सकते. Practical knowledge होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कोई नहीं बोलेगा कि practical knowledge नहीं होना. Practical knowledge होना बहुत ज्यादा जरूरी है. What is practical knowledge says? जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरे पास 500 रुपए थे तो I should think मेरे पास इस पैसे को निवेश या इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं. I can deposit into fixed deposit. I can also give this in the form of debenture to the company. अगर मेरे पास फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली इट इज अ सेफ ऑप्शन बिकॉज इट्स कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक नॉर्मली पैसा डुबाती नहीं है. कंपनी का कुछ भरोसा है क्या? चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, कुछ भरोसा नहीं है. राइट? अगर मैं कंपनी में अपना पैसा लेंड कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, डू यू थिंक आई एम टेकिंग एडिशनल रिस्क? रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है ना? तो नॉर्मली जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, विल इट बी इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट, विल इट बी मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट? क्योंकि अगर वो इक्विवेलेंट हुआ तो विल वी इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स? नो. सेफर साइड विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन
fixed deposits of the bank. A depositor will not deposit into bank, he will deposit only in the debentures. तो normally थोड़ा अलग सोचो, think beyond things. मैंने क्या बोला, इंडिया में जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं. दैट मींस व्हाटएवर डिबेंचर इशू क्रिएट अ चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, राइट. अगर कोई अच्छी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए, डू यू रियली थिंक ऐसे कंपनी में और ऐसे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद कर उन्हें पैसे लेंड करना कोई रिस्क की बात होगी? नहीं. सो यू शुड से दिस टू योर पेरेंट्स, डोंट जस्ट डिपॉजिट योर मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. Remove that money from the fixed deposit, invest it into debentures, you'll get more returns. Ultimately what is required is returns, right? More returns is required. So this is how you should apply your knowledge. Practical application of knowledge is important. What I am going to say you, what is, घर पे आप जाके पिताजी को बोलो कि भाई आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे मिल क्या रहा है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है. टीडीएस जाने के बाद अपने हाथ में कितना आता है? 5%. कितना आता है? 5%. तो 5%, 5-5.5% इंटरेस्ट क्यों करना है? इससे अच्छा लेट्स लुक इनटू द स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट्स, कहां पे कौन से कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर रही है. कोई अगर रेप्यूटेड कंपनी वो डिबेंचर्स इशू कर रही है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दोस डिबेंचर्स, बिकॉज ऑलरेडी डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड. I have already told you whether the company is generating profit or whether the company is earning loss. Will you get interest? Yes, you will compulsorily get interest. Interest which is paid on the debentures is more than what you get on fixed deposits, right? Is there any risk in repayment of the capital? No. Repayment of capital is first done to debenture holders, and that to be charge is created over the assets. कंपनी पर पैसा हो या मत हो, उनके अगेंस्ट जो चार्ज किए गए एसेट्स है वो कंपनी के एसेट्स बेचकर पहले सबसे पहले उनका पैसा चुकाया जाएगा. जब तक उनका पैसा नहीं चुकाया जाता तब तक वो एसेट के पैसे और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो उतनी सिक्योरिटी मिल रही है कि जितने बैंक में मिलती है, उतनी सिक्योरिटी मिल रही है कि बैंक में मिलती है, राइट. तो एक क्या बोलते हैं मुझसे, समझदार इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, बीइंग इन्वेस्टर हु इज वेरी साउंड, राइट, हु इज रैशनल इन्वेस्टर, आई एम सेइंग बीइंग अ रैशनल इन्वेस्टर, जब कभी भी तुम तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके शादी के लिए, शादियों के लिए जब पैसा निवेश करोगे फिक्स डिपॉजिट में, आप अपना खुद का पैसा, चलो किसी और के लिए खुद ही सोच रहे हो कि मेरा कुछ पैसा है, मैं पैसा जमा करना चाहूँ और मैं इसको डिपॉजिट करा. विल यू पार्क योर मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, विल यू ट्राई थिंकिंग एंड लुक इनटू मार्केट ऑप्शंस ऑफ डिबेंचर्स? व्हाट विल डू एज अ रैशनल इन्वेस्टर? इन्वेस्टर क्या चाहता है? रिटर्न्स. व्हाट डज द इन्वेस्टर वांट? रिटर्न. अगर आपको रिटर्न ज्यादा डिबेंचर से मिल रहे हैं, व्हाई डू यू पार्क योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट? So go and discuss with your parents. Your parents should understand कि सर क्या पढ़ाते हैं क्लास में आकर. जैसे मैंने बोला फॉर्म 16 के बारे में बताया, कितने लोगों ने जाकर अपने पेरेंट्स से पूछा है फॉर्म 16 के बारे में? काकड़े देखा क्या फॉर्म 16? पापा का ओपन करके देखा क्या आपने देखा? और कौन था तीसरा उसी में फॉर्म 16 वाला? देखा क्या तुमने भी? खोल के देखा फॉर्म 16? कितना भरते हैं अमाउंट? कितना डिडक्ट हुआ? टीडीएस की रकम कितनी है? हाँ, बहुत बड़ा फॉर्म है, तो उसमें जो मैंने देखना था, अमाउंट देखना था, वो तो देख लेते हैं. कितना है टीडीएस? 70,000 टीडीएस है. 10% टीडीएस की सबसे रिवर्स कैलकुलेशन लगाओ, मतलब इनके पापा को सैलरी कितनी है बताओ क्या? जाने दो. नको क्लास में नको. 70,000 का टीडीएस है तो इमेजिन करो उनके पिताजी की सैलरी कितनी. मैं बता सकता हूँ 70,000 की टीडीएस के ऊपर उनकी सैलरी कितनी है. लेकिन ये सारी चीजों का हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है. वी नीड टू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. 5 लाख तक जीरो टैक्स लगता है. 5 लाख तक जीरो टैक्स लगता है. 5 लाख के आगे टैक्स लगना शुरू होता है तो उससे ज्यादा ही है, इतना मैं बोल सकता, ज्यादा नहीं बोलूंगा. तो भाई फॉर्म 16 से हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आया कि कोई भी सैलरीड व्यक्ति या जो व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाता है उसकी फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट कितनी होगी या फिर उसकी सैलरी कितनी होगी, ये मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया था. अब घर जाकर पेरेंट्स को बात करो, मेरे नाम पे, किसी के नाम पे, दादा के नाम पे किसी ने भी कोई एफडी की है क्या? एफडी की है तो कितनी रकम है, उसके ऊपर का ब्याज कितना है, ये डिस्कस करो. पूछो पेरेंट्स से कितना ब्याज मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है. अगर वो अभी रिसेंट ईयर में मैच्योर हो रही तो उनको बोलो प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट, अरे भाई प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट दिस अमाउंट बैक इनटू डिबेंचर्स, सॉरी फिक्स्ड डिपॉजिट. ट्राई टू इन्वेस्ट और पार्क दिस अमाउंट इनटू डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर में पैसा जाएगा तो इट विल बी लेंडिंग, इट विल बी बोरोड कैपिटल. हाँ, नहीं, जितना टाइम पीरियड रहेगा उतना टाइम पीरियड के लिए रखना पड़ेगा ना पैसे. फिक्स डिपॉजिट में कहां ले सकता है? फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए, तो उससे पहले ले सकता है क्या? नहीं ले सकता. तोड़ सकते हैं लेकिन कुछ मिलता है क्या रिटर्न? उसके ऊपर जीरो मिलता है. हाँ, तो भाई डिबेंचर पे भी मिलेगा ना. इट तो डिबेंचर आप कंपनी को देखो, डिबेंचर में प्राइवेट में और बैंक में अलग है, हर एक की पॉलिसी अलग जाते हैं. फिक्स डिपॉजिट आप तोड़ कर ले सकते हैं, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है क्या? अल्टीमेट रीजन क्या है फिक्स डिपॉजिट करने का? रिटर्न. क्या है भाई? Any important thing? Anything important?
बोलो ना क्या बोल रहे थे उसको, कोई अच्छी चीज समझा रहा हूं, ध्यान दो। फिक्स डिपॉजिट तोड़कर तुम ले सकते, उसके ऊपर रिटर्न क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। अब इन केस ऑफ इमरजेंसी तो ऑप्शंस तो बहुत है बेटा। कंपनी पैसे नहीं देंगे, लेकिन समझ ले तेरे डिबेंचर्स है, तेरे डिबेंचर्स के पैसे 5 साल बाद आने, 1 साल के बाद तेरे को इमरजेंसी हो गया, कंपनी तेरे को पैसे नहीं देगी, कंपनी तेरे को 5 साल के बाद दे देगी। कंपनी में फंडामेंटल है इतने पैसे, पहले पैसे देने का। फिक्स डिपॉजिट में तो भी पैसा मिलता है, लेकिन पैसा पूरा के पूरा नहीं देते बेटा, वो लोन देते हैं। यू आर रॉन्ग, दे डू नॉट गिव यू बैक द मनी, दे गिव यू लोन। उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट और लोन का इंटरेस्ट अगर देख लिया तो अल्टीमेटली तुम्हारे एफडी के अमाउंट में कुछ तो भी कम करके सेटलमेंट करते हैं, पूरी की पूरी रकम भी वापस नहीं देते हैं, पूरी की पूरी रकम भी वापस नहीं मिलती। मान लो एक 10 लाख की एफडी की है 5 साल के लिए, 2 साल के बाद मेरे को इमरजेंसी है, 2 साल के बाद बैंक क्या करता है, मेरे को 8 लाख रुपए देता है, उसके ऊपर ही ब्याज निकलता है। अल्टीमेटली थंब रूल ये है, बैंक ऑलवेज विंस, बैंक फुकट कुछ नहीं छोड़ते। अगर तूने 5 साल की रकम बोला तो 5 साल की रखना तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं रखे तो अल्टीमेटली तुम अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालो और गणित निकालो, तुमको ये समझेगा कि 10 लाख के बदले मेरे को 9 लाख रुपए है। कैसे क्या? तो उसके लिए टाइम वैल्यू मनी सीखो, सिखाया जाएगा फाउंडेशन में। अल्टीमेटली एट सेट कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपको सीखना है तो क्या सीखना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर सीखोगे तो आपको समझ में आएगी कि पैसे की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 10 लाख के 9 लाख ही होते हैं। अब जैसे तुमने कहा कि मेरे पास डिबेंचर है, कंपनी तो कोई भी हालत में पैसे वापस नहीं देती, तो ऐसे केस में तो क्या कर सकता है? कोई प्राइवेट तेरा दोस्त है, समझ लो मेरे पास आएगा, सर मेरे 2 साल हुए डिबेंचर के और 3 साल है, तो डिबेंचर के 5 साल का जब पैसे आएंगे तो ब्याज के साथ मैं आपको ये दे दूंगा, तब तक के लिए मुझे पैसे दो, तो आई कैन लेंड यू सम अमाउंट। ऐसा कुछ हो सकता है ऑप्शन, लेकिन कंपनी वापस नहीं देती। हाँ, कंपनी नहीं देती, जैसे बैंक लोन देती है वैसे कंपनी लोन कुछ नहीं देती। हाँ, एनी अदर डाउट? हाँ, सब बताऊंगा ना, डिबेंचर चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स? वो चैप्टर में डिटेल डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बड़े ऑब्वियस बात है, डिबेंचर्स बॉरोड कैपिटल करोड़ों में होता है, कहाँ एक एक व्यक्ति को ढूंढते पड़ा। डिबेंचर घेता का डिबेंचर, हाँ डिबेंचर ले लो, शेयर ले लो, गाड़ी पे लेके घूमने वाले क्या? इतने सारे लोग कहाँ से आएंगे? करोड़ों में कैपिटल होता है। अल्टीमेटली ऑनलाइन उसको देखो, मार्केट में 2 तरह की सिक्योरिटीज होते हैं, इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। डिबेंचर भी ऑनलाइन मार्केट में बिकता है और शेयर्स भी जो है ऑनलाइन मार्केट में बिकते हैं, दोनों भी बिकते हैं। हाँ, यस, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? Shall I move ahead with the features? Okay, let's start with the features of debenture, starting with the first point, promise. Now, what is a debenture? Debenture is a promise. Promise by whom to whom? Promise by the company to the debenture holder that the company will repay certain amount of money along with interest at the maturity period. कौन किसे प्रॉमिस कर रहा है? भाले प्रॉमिस कर रहा है कटरीना को, जन्म जन्म 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हु इज द प्रॉमिसर? जो प्रॉमिस करता है वो कौन होता है? प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस करता है वो कौन होता है? प्रॉमिसर। जैसे प्रॉमिस की जाती है वो होते प्रॉमिसी। जैसे प्रॉमिस की जाती है वो कौन है? प्रॉमिसी। जिसे प्रॉमिस केला वो कौन है? प्रॉमिसर। जिसको प्रॉमिस केला वो प्रॉमिसर, जिसे प्रॉमिस की है वो है प्रॉमिसी। तो भाले ने प्रॉमिस किया है, जन्म जन्म 7 जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा कटरीना, डोंट वरी, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा। तो भाई अब यहाँ पे प्रॉमिस कौन कर रहा है? भाले। प्रॉमिस कौन कर रहा है? भाले। हु इज द प्रॉमिसर? भाले। तो प्रॉमिसर क्या बोल रहा है? 7 जन्म तक साथ निभाऊंगा साथिया, राइट? साथिया, 7 जन्म साथ निभाऊंगा कौन बोल रहा है? भाले बोल रहा है। हु इज द प्रॉमिसर? अब इसी केस में कौन किसे प्रॉमिस कर रहा है? कंपनी प्रॉमिस कर रही है डिबेंचर होल्डर को। हु इज द प्रॉमिसर देन? कंपनी। व्हाट इज द प्रॉमिसर प्रॉमिसिंग? द कंपनी इज प्रॉमिसिंग कि जो पैसा हम आपसे उधार या बोरो कर रहे हैं, इसे एक पर्याप्त वक्त के साथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वी विल रिपे यू विदाउट फेल। सो हु इज मेकिंग अ प्रॉमिस? कंपनी। किसे कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को, द वन हु बाइज द डिबेंचर। व्हाट इज द प्रॉमिस? कि भाई ये जो रकम है जो हम आपसे बोरो कर रहे हैं, इस रकम को हम पर्याप्त वक्त के बाद ब्याज के साथ आपको लौटाएंगे, राइट? सो डिबेंचर में क्या होता है? प्रॉमिस होता है, वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या वादा है? वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा,
वादा रहा। और कौन सा है वादा? मनाली, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और कौन सा वादा? वादा न तोड़, वादा न तोड़। और कौन सा रहा वादा? वादाचा चहा, गुळाचा चहा। मैं बोला वादाचा चहा कहां से है? और क्या वादा? ये हंसी वादिया, नहीं वादिया नहीं। और कौन सा रह गया वादा? कोई गाना रह गया? करे वादा करके साथिया, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा, ये वादा रहा। और कौन सा बचा वादा? कौन सा रह गया वादा? गाना कौन सा रह गया वादा का? सर्च नहीं, वादा का कौन सा गाना रह गया? कौन सा रहता है मां? वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम। और कौन सा रहा भाई वादा? और कौन सा रहेगा बेबी? वादा कोई गाना रह गया? मैं वादा करता हूं साथ निभाऊंगा साथिया, साथ साथ वादा। चलो चलो ठीक है। हाँ आधा आधा वादा वादा। ओ हट गंदे बच्चे, गंदे बच्चे। क्या हुआ तेरा वादा, वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। इरादा, इरादे बड़े नेक लग रहे तुम्हारे। और कौन सा रह गया वादा? ए वादा कौन सा रह गया? कोई वादा? वादा ये नहीं, वादा रह गया वादा। कोई रह गया गाना? और कोई रह गया वादा? और कोई तो गाना है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वादा। हाँ हाँ आधा वादा। कौन वादा? अरे गंदे अजमेरा। कौन सा रह गया? ए कोई रह गया क्या वादा? कौन सा? हाँ अच्छा चलो बेबी 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 प्लीज 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 पे अटेंशन। तो कौन वादा कर? हाँ कौन सा रह गया? सांगा ऋतुजा कौन सा है? बोलना कान शुक्ल लेकर से। कौन सा गाना है? बोलो ना जल्दी। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सूरज। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। तो कंसेप्ट क्या हो? वादा यानी प्रॉमिस। वादा न तोड़, वादा न तोड़। कसम तोड़ दे कभी नहीं? चलो खाओ फिर मेरी कसम। शेट्टे की कसम सबका, शेट्टे तेरी कसम। इसको मारो, पहले मारो। चलो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। प्रॉमिस यानी वादा। कौन वादा किसे कर रहा है? कंपनी वादा कर रही है। किसे प्रॉमिस कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को। क्या वादा कर रहे हैं? कि भाई आप जो रकम हमें दे रहे हो, ये रकम हमारे पास सेफ है। पर्याप्त वक्त के बाद, जितने वक्त के लिए हम आपसे पैसा बोरो कर रहे हैं, उस वक्त की मैच्योरिटी के बाद ये पैसा अलोंग विथ इंटरेस्ट आपको हम रीपे करेंगे। हो पतंगे। Debenture is a promise by the company that it owes specified sum of money to the holder of the debenture. झालं. What is face value? What is face value? What is face value? Value which is mentioned on the debenture certificate will be called as my face value. अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, इसनो व्हाट इज इश्यू वैल्यू देन? at which the are issued to
डिबेंचर होल्डर. बरोबर. इश्यू व्हॅल्यू काय आहे बेटा? इश्यू व्हॅल्यू, इश्यू व्हॅल्यू इज द व्हॅल्यू ॲट विच डिबेंचर आर इश्यूड टू पब्लिक, जनरल पब्लिक, इश्यूड टू जनरल पब्लिक. अब यहां पे मुझे एक बात बोलो, यहां पे मेरी एक बात समझो. यहां पे मैं कॉमन बात कहता हूं, थोड़ा सा अकल वाली बात है. सिटीज पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट. कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास क्लास में, आई एक्सेप्ट. कभी एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी लोग एक बार हुआ था क्या? तो भाई शिंदे बहुत आवाज निकल रहा तू. चलो 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 चलो, हो गया. अब प्लीज बुक्की मारी ना. Hey, common sense. Hey, common sense, please. Whites किधर है आज? Whites वट्या वट्टम प्रथमा. चलो सुनो मेरी बात, बताओ भाई. Whites वट्या वट्टम प्रथमा, तीनों में से कोई भी लॉजिक बताओ मेरे को. शर्म आती है क्या तुम्हें? इतना अच्छा सरनेम खराब करते हो, बेवकूफ. अक्कल नहीं तुम्हें? हाँ झालं झालं, बस 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 हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया. बोला मुंडा आजा, मुंडा बुला बुला बुला, अंदर बुला. मुंडा मुंडा टा हुआ तेको, मुंडा. हाँ मुंडा लग तो वैसे रे, शेट्टे ने की वैसे कटिंग. कटिंग तो वैसे लग रही, शेट्टे ने की जैसे. शेट्टे ब्रदर्स कटिंग वाले. चलो हाँ चलो भाई, अभी प्लीज प्लीज पॉइंट पे आओ. फेस वैल्यू, यहाँ पे कॉमन लॉजिक का क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो. इन केस ऑफ शेयर्स, if it is a reputed company having goodwill in the market, they know that the shares will be easily bought at a value higher than the face value. So at times, if the company is having good goodwill in the market, issue price is greater than the face value. Issue price is greater than the face value. When issue price is greater than the face value, the shares are issued at premium. But if the company has no good reputation, then the issue value is less than face value. When the issue value is less than face value, the shares are issued at discount. When the issue value is equal to face value, the shares are issued at par, at premium and at discount. Now apply your own logic and say me, company is issuing, Reliance company is issuing debentures of rupees 100. Reliance company is issuing debentures of rupees 100. What would be the issue price? What Prathama, तुम तीनों पहले बताओ. What could be the issue price? Will the issue price, अब Reliance जैसे कंपनी जिनका रेपुटेशन अच्छा है, will the issue price of the debenture be more than, less than or equal to? Whatever is the answer you have to say. और उसका लॉजिक भी पूछूंगा. चलो बताओ वैट्स, तुम बताओ. More. Okay, why more? क्योंकि रेपुटेशन अच्छा है तो कोई भी खरीद लेगा. ओके हाँ हाँ सॉरी हाँ विष्णु वट्टमवार नको जातोच बरे तुम्ही. हा ज्यादा रहेगा. हाँ सेम. कैन यू एक्सप्लेन मी द लॉजिक ऑफ सेम? इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा. किसे? कंपनी को. ओके हाँ, ओके हाँ. वैल्यू अगर ज्यादा होगी
तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। 200 रुपए का डिबेंचर दिए तो 200 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बरोबर ना? हाँ ठीक है। अच्छा तो सेम होगी। और कौन बचा क्या? वट्टा मार कुछ? रेवन मार तो एब्सेंट है आज। हाँ शेट्टी तुम बोल दो। नहीं लेकिन लॉजिक समझो, शेट्टी क्यों आए? सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे क्यों नहीं आया कुछ? शेट्टीवार। हाँ यस आंसर। हाँ क्या क्या? अमीर कंठवार है उसका, बरोबर। हाँ आदित्य अमीर कंठवार, वाह सच्ची। हाँ हाँ ओ षड्डे पदवी है। अमेरिकेला एग्जाम ते पदवी घेऊन आले शेट्टे। और पदवी वाले ये भी है ना, मंगरुळकर मोगरकर नहीं है, मोगरकर एब्सेंट है। तो भाई हाँ पदवी कौन सा वार? अमीर कंठवार। हाँ अमेरिका हाँ। अमील के अमीर, ओ सॉरी अमील कंठवार बोलो। सेम रहती। क्यों सेम रहती? क्योंकि एक तो डिबेंचर ट्रांसफर नहीं हो सकते। हाँ एक सेकंड तो कैसे रही इशू? हाँ इक्विटी शेयर जैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते और कंपनी वो डिबेंचर वापिस लेके आपको पैसे विद इंटरेस्ट देती है। लॉजिक नहीं समझाया था। अमीर कंठवार थोड़ा अमीरों के जैसे सोचो, गरीबी से बाहर। अमीर कंठवार थोड़ा अमीर लोगों के जैसे सोचो, गरीबी जैसी सोच बाहर निकालो। अमीर के जैसे सोचो, फील गरीब, अमीर ऐसे गरीबों के जैसे सोचने चाहिए, मुझे अमीरी वाली सोच चाहिए। जैसे कोई है अरे हर्षदा फड़कनकर, बताओ फड़कनवार क्यों नहीं? हर्षदा फड़कनवार बोलो। हाँ फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू वैल्यू। क्यों लॉजिक ऐसा? अच्छा अगर इश्यू वैल्यू ज्यादा, इश्नू लक्ष्य दे, अगर इश्यू वैल्यू ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा फरकनवार हो गए, नील अमीर कंठवार हो गए, वट्टमवार हो गए, वैट्स हो गए, सब हो गए। अच्छा और कोई बच्चा कुछ कोई अपनी लॉजिक खुद से बताना चाहेगा? कौठेकर क्या इश्यू बरोबर पे करेंगे? क्यों बरोबर पे करेंगे? ज्यादा पे क्यों नहीं कर सकते? ज्यादा पे करेंगे तो ज्यादा वैल्यू होगी, बरोबर। बर ठीक है। हाँ कंसुक लेकर बताओ। हाँ क्या सेम? ज्यादा पे इश्यू होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, बरोबर। ज्यादा पे लगाए तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मोगरकर किधर है? मोगरकर हाँ अभी तेरा हो गया, चल अभी कुछ नहीं। मोगरकर आएगा? हाँ चलो मंगरुळकर तुम बताओ। ओ मंगरुळकर बताओ। हाँ इक्वल। क्यों इक्वल? लॉजिक वही है, ज्यादा प्राइस रहा तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। बर ठीक है। अच्छा हाँ मंगरुळकर पदवी मिली उनको भी अमेरिका से। हाँ चलो बोलो नलगिलकर मैं तो भी बोल रहा, कोई तो भी छूट रहा। हाँ नलगिलकर। हाँ मास्क करो। इक्वल। क्यों इक्वल? क्यों इक्वल? क्यों इक्वल? ज्यादा पे प्राइस पे रहेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट। चलो ठीक है। क्लास में से कितने लोग इस लॉजिक के साथ जाते हैं कि इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर एंड फेस वैल्यू शुड बी इक्वल? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस थॉट? इक्वल। हाँ इक्वल बोल रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कि इश्यू वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू? सब में हाथ ऊपर करता क्या बे? इतनी भी अमीरी नहीं अपने में। हाँ यस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इश्यू वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू? यस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉमन लॉजिक सबको क्लियर हो? मैं आता हूं, चलो ठीक है। वेट आई विल कम टू पॉइंट। कितनों को ऐसा लगता है कि इश्यू
ये फेस वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। कोई किसी को लगता है ऐसे भाई? और किसी को ऐसा लगता है कि इश्यू वैल्यू कैन बी लेस देन फेस वैल्यू। देखो, पढ़ाने के लिए मैं पूरे की पूरे फीचर्स 2 मिनट में पढ़ा सकूं, 10 मिनट 10-15 मिनट में। अभी भी मैं अगर चालू करूं तो अभी भी पूरे फीचर्स खत्म होते हैं। ऐसा पढ़ना है क्या अपने को? ऐसा पढ़ना है क्या? फंडामेंटल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। आपका दिमाग घोड़े के जैसे दौड़ना चाहिए, गधों के जैसे नहीं। हो जूली, घोड़े के जैसे दौड़ना चाहिए। इट शुड। कहां गई? एब्सेंट है आज भी एब्सेंट है, एब्सेंट है। घोड़े के जैसे दिमाग दौड़ना चाहिए, फास्ट, सुपर फास्ट। ऐसा किसी को लगता है? अंबुरे, तुम्हाला काय वाटतं? अंबुरे कौनसा जैन, तुम्हाला काय वाटतं? इक्वल, क्यों इक्वल? हाँ, सबने बोला इसलिए मैंने भी बोला। अच्छा, अगर ज्यादा इश्यू पे किया तो ज्यादा ये लगेगा, है ना? ओके ओके। हाँ बेबी, यू हैव एनी थिंग टू से? सुबह बहुत तुम ऐसा फेल रहे थे अपने थॉट्स के साथ, मर गया तो, जिंदा हो गया तो, काट दिया तो, थैली में डाला तो, इसमें अभी भी कुछ बोला? बहुत मारा हमारे, उसी में बहुत वायलेंस हुआ। 4-5 हजार करोड़ लोगों को तो मार डाला हमने। हाँ, खाली मारने काटने की बातें आती है तुम्हारे को, यहां पे भी कुछ दिमाग लगा प्लीज। हाँ, इश्यू वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? रेपुटेशन के लिए इश्यू वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके, किसी को ऐसा लगता है क्या और बीबी के साथ साथ कि इश्यू वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए रेपुटेशन के साथ साथ, या इश्यू वैल्यू फेस वैल्यू के साथ ही होने चाहिए? ओके, दाइमा जी कुछ अपनी राय भी है कि नहीं? कि खाली इतना जाता तुमको, इतना जाता ना? हाँ कर दो फिर एक बार, मैं समझाता लॉजिक। हाँ साहिल देशमुख बता। हाँ इक्वल, क्यों इक्वल? अच्छा चलो ठीक है, चलो सभी लोग क्लास में मैक्सिमम लोगों की राय ये है कि सर इश्यू वैल्यू और फेस वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आई सेड प्लीज पे अटेंशन। क्लोज योर बुक्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। किताबें बंद करो और मैं जो बोल रहा हूं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। आई एम टचिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी। इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता, और इतना डेप्थ में जाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। जो किसी के पास है नहीं, अपने पास बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस है। सुनो मेरी बात, शिंदे पाटिल, बिल बहुत हो रहा तुम्हारा, बहुत बिल हो रहा तुम्हारा। तो अब मेरी बात समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, I congratulate you all that your logic is correct, that issue value and face value of the debentures is same. Round of applause सभी के लिए। सभी लोगों के लिए तालियां, मेरी बेबी को छोड़ के, मेरी बेबी को छोड़ के सभी लोगों के लिए। बेबी तो अकेली ताली बजा सबके लिए, चल। हाँ, सभी लोगों के लिए तालियां कि ये लॉजिक तो सही है, that the issue value and face value of the debenture should be same. अब बेबी एक और बार ताली बजा। अब ये ताली इसलिए क्योंकि लॉजिक जो आप सभी लोगों ने दिया वो सरासर गलत है। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी इज्जत से बेइज्जती करना। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी इज्जत से बेइज्जती करना। तो कैसे, क्या, क्यों समझ में आ रहा है तो समझने कुछ। नाउ प्लीज पे utmost attention to things I am saying. These are not normal things which can't be discussed by anybody or any teacher in Parvani. खुद की तारीफ कर लेना चाहिए, बाद में मौका ना मिले, कोई करो ना करो, अपन अपनी तारीफ करके वाह 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 वाह। दिनेश सरांच्या नावाना चला ऐका, सुन मेरी बात। कम टू ए पिलू, बेबी ध्यान दे, ऐका आणले नाही ब्रेक, ब्रेक में ब्रेक। ओके चलो, प्लीज पे अटेंशन। Whether to declare dividend or whether not to declare dividend is the right of, is the right of, is the right of. Okay, can you tell me the logic? The dividend declare, let's say company has shares of face value of rupees 100. Please pay attention towards what I am saying. Company has issued shares of face value of rupees 100. What is the face value of the shares issued by the company? 100.
the same shares being of Reliance have been issued at 500 rupees. Have been issued at 500 rupees. Okay. The company being Reliance has made extraordinary profit. Please pay attention. Company has made extraordinary profits. Now considering the extraordinary profits of the shareholders, the company, the board of directors have decided to make the shareholders happy and they have declared a dividend of 10%. They have declared a dividend of 10%. Now my simple question to you is, the dividend recommended by the board of directors is 10%. Now this 10% will it be calculated on face value or issue value? It has to be calculated. फिल लाऊं तेरे को फिल? हर माल 10 रुपए, मीना बाजार से लाया हूं। अब दिमाग काम कर रहा है क्या कुछ लोगों का? मेरा सवाल साफ है। My question is very simple and straightforward. 10% is the rate of dividend. This rate of dividend of 10%, will it be paid on face value or issue value? Face value or issue value? Face value or issue value? The answer is, whatever is the rate of interest and dividend, it is always being paid on issue value, नहीं face value. किसके ऊपर होता है? face value. तो अगर कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है काबरा जी, तो इसका मतलब कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। डिविडेंड कितना होगा? ₹10 पर शेयर और 50 रुपीज पर शेयर। इट विल बी 10 rupees per share because dividend declared will be with respect to the face value. It will be with respect to the face value. It will not be with respect to issue value. ये फंडामेंटल समझ में आया सभी को? जो कुछ भी डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है that is with respect to face value and not with the issue value. The value which is mentioned in the share certificate, उस वैल्यू के मुताबिक डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा। तो डिविडेंड कितना होगा? 10 रुपीज और 50 रुपीज गणेश? 10 रुपीज। नाउ कम टू अवर लॉजिक ऑफ डिबेंचर्स। मैंने क्या बोला? इश्यू वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। लॉजिक सही है लेकिन समझाने का तरीका लॉजिक गलत है। आपका क्या कहना है यहाँ पे? मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। यू आर सेइंग कि सर 100 रुपए का डिबेंचर है, उसको हम 200 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, उसे हम 200 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं है दैट द इश्यू वैल्यू ऑफ द डिबेंचर शुड बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। कंपनी कैन, इवन इफ द कंपनी कैन, नो वन विल बाय। थिंक ऑफ द लॉजिक। एग्जैक्टली, डोका काम करते तेरे किरण। मैंने क्या बोला? इवन इफ द कंपनी सुपर डुपर डुपर सुपर डुपर सुपरेस्ट डुपरेस्ट कुपरेस्ट सबसे आगे भी रहा, इतना भी गुडविल अगर उसका मार्केट है, मार्केट में उतनी गुडविल है, रुतबा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, सब है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी अगर 100 रुपए का डिबेंचर अगर 200 रुपए में बेच रहा है, फिर भी इन्वेस्टर जो है वो डिबेंचर्स को 200 रुपए में खरीदने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। अभी तुम लोगों का लॉजिक क्या था? सर 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 200 रुपए की इश्यू वैल्यू है, राइट? अगर 10% इंटरेस्ट डिबेंचर पे है तो फेस वैल्यू के मुताबिक कितना इंटरेस्ट जाता है? ₹10 पर डिबेंचर, हाँ या ना? और इश्यू वैल्यू के मुताबिक डिबेंचर कितना जाता है? 20 रुपीज पर डिबेंचर। सभी लोगों ने लॉजिक बोला सर इश्यू वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, क्योंकि 10 रुपए के जगह पे 20 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपका लॉजिक गलत हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर पे किया जाता है? इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर पे किया जाता है? फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100। सो इवन इफ यू, अब मैंने यहां पे लॉजिक क्या बोला? यहां पर अगर इसके बावजूद कंपनी के रेपुटेशन की वजह से कंपनी ने डिबेंचर 200 रुपए में इश्यू किए, फिर भी इन्वेस्टर जो है 200 रुपए में आपका डिबेंचर कतई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि अगर 100 रुपए का डिबेंचर 200 रुपए में खरीद के 10% का ब्याज अगर 100 रुपए में मिलता है तो ब्याज का कैलकुलेशन ये कहता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू गेट इज 5%। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? समझो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू पे या इश्यू वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। डिबेंचर्स की इश्यू वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है 100, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 10 रुपए। अगर यही शेयर्स यही डिबेंचर 100 रुपए के जगह पर 200 रुपए में इश्यू किए गए एट अ वैल्यू वेयर द इश्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, वेयर द इश्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। मैं डिबेंचर कितने में खरीद रहा हूं 200 रुपए में, मुझे इंटरेस्ट 10% कितने पे मिल रहा है 100 रुपए पे, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट कितना आ रहा है मुझे 10 रुपए। मुझे इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10 रुपए। 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, लेकिन मैंने कितने दिए कंपनी को 200, तो अल्टीमेटली मुझे कितने आ रहे हैं 200 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज आ रहा है। तो व्हाट इज माय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यानी बोलने के लिए तो आई एम बाइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ इश्यू वैल्यू ऑफ ₹200। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम गेटिंग 5%। यानी किताब पे दिखाने के लिए 10 और हाथ में लेने के लिए 5। इतने बेवकूफ है हम नहीं। अमीर कंटवार हो सकते हैं, बाकी का तो मालूम नहीं। क्या हम इतने बेवकूफ हैं? आपकी सिर्फ लॉजिक गलत हुई है। लॉजिक समझ में आया? किस लॉजिक से? ऐसा नहीं है इश्यू वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा इश्यू के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं होता। लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट हमेशा, इंटरेस्ट हो डिविडेंड हो, ये हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर। इश्यू वैल्यू मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं कैलकुलेट होता। भाई साहब रिलायंस के शेयर की तो लाखों में प्राइस है, लाखों के ऊपर 10% डिविडेंड देते तो चप्पे हो जाएंगे रिलायंस कंपनी, कुछ बचेगा नहीं उनको खाने को। डिविडेंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। इज अ फंडामेंटल क्लियर? समझ में आया? अगर कंपनी का कितना भी रुतबा रहो, दौलत रहो, इज्जत रहो, शोहरत रहो, कुछ भी रहो, रिलायंस रहो, रिलायंस रहो, कोई भी रहो, अगर वो 200 रुपए में भी डिबेंचर इश्यू करेंगे, कोई भी लेंडर 200 रुपए में डिबेंचर खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको ब्याज कितने का मिल रहा है 100 रुपए का। 100 रुपए तो कंपनी फुकड़ में इस्तेमाल करेगी ना। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गेटिंग 5%। 5% उससे लेना तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में क्यों ना डाले पैसे? समझ में आई बात? दिस इज द लॉजिक व्हाई फेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इश्यू वैल्यू। समझ में आया? इक्वल समझ में आया? लॉजिक समझ में आया क्या सबको? सबको लॉजिक समझा क्या? दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ इश्यूइंग द डिबेंचर्स एट फेस वैल्यू। और नॉर्मली मल्टीपल्स ऑफ 100 में जो है फेस वैल्यू डिबेंचर्स की होती है। डिबेंचर्स की जो वैल्यू होती है वो मल्टीपल्स ऑफ 100। इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया, इक्विटी शेयर्स 1 रुपए का भी होता है, 10 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स अगर हम नॉर्मली देखें, दे आर ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ 100, 1000, 500 ऐसे। द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर normally carries a high denomination, it is 100 or in multiples of 100. Are we clear? Concept समझ में आया सबको? अच्छा लगा? Right? Logic समझ में आया? That's all for today. See you guys tomorrow. Thank you so much.